हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद मेटामॉर्फस रॉक। इसका आंसर हो जाएगा गार्नेट। गार्नेट इज ए मेटामॉर्फस रॉक। ठीक है, किससे बना रहता है? गार्नेट क्या है? गार्नेट इज कनेक्टेड विद द मेटामॉर्फस रॉक. Metamorphic rocks are a result of a transformation of existing rock in a process called metamorphism, which means change in form. Metamorphic minerals are those that form only at the high temperatures and pressures associated with the process of metamorphism. These minerals, known as index minerals, include sillimanite, kyanite, and स्टेरोलाइट. ठीक है, स्टेरोलाइट एंड अलूसाइट एंड सम गार्नेट. अदर मिनरल्स सच एज ओलिविनाइज, पायरोक्सीन और एम्फीबोले, माइका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज may be found in metamorphic rocks but are not necessarily the result of the process of metamorphism. Garnet is concerned with metamorphous rock. मेटामॉर्फस रॉक से कौन कनेक्टेड है? इसका आंसर है गार्नेट. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ए रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक इन ए प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म. मेटामॉर्फिक मिनरल्स आर दोज दैट फॉर्म only at the high temperatures and high pressures associated with the process of metamorphism. These minerals, known as index minerals, include sillimanite, kyanite, स्टेरोलाइट एंड अलूसाइट and some garnet. Other minerals such as olivines. ठीक है, other minerals such as olivines, pyroxene, amphibole, mica, feldspar and quartz may be found in metamorphic rocks but are not necessarily the result of the process of metamorphism. Garnet is connected with metamorphous rocks. Question number 7. Quartzite is metamorphosed from. इसका आंसर हो जाएगा sandstone. Quartzite is metamorphosed from sandstone. Quartzite is a non-foliated metamorphic rock composed almost entirely of quartz. It forms when a quartz-rich sandstone is altered by the heat, pressure and chemical activity of metamorphism. These conditions recrystallize the sand grains and the silica cement bind them together. The result is a network of interlocking quartz grains of incredible strength. Marble is a metamorphic rock that forms when limestone is subjected to the heat and pressure of metamorphism, while slate is a metamorphosed rock made from the sedimentary rocks. Question number 7 में क्या पूछा गया है? Quartzite is metamorphosed from sandstone. ठीक है, Quartzite is metamorphosed from sandstone. Quartzite is a non-foliated metamorphic rock composed almost entirely of quartz. Quartzite forms when a quartz-rich sandstone is altered by the heat, pressure and chemical activity of metamorphism. ठीक है, Quartzite forms when a quartz-rich sandstone is altered by the heat, pressure and chemical activity of metamorphism. These conditions recrystallize the sand grains and the silica cement binds them together. The result is a network of interlocking quartz grains of incredible strength. Marble is a metamorphic rock that forms when limestone is subjected to heat and pressure of metamorphism, while slate is a metamorphosed rock made from the sedimentary rocks. क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें और दिए गए हैं लिस्ट 1 में और उनके सेकंड लिस्ट में उस स्टेट वेयर दे आर माइंड. ठीक है, तो और उनके स्टेट बताने हैं जहाँ से वो क्या है माइंड किया गया है, तो इनको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 8 में.
तो सबसे पहले हो गया मैंगनीज। मैंगनीज को कहाँ से मैंगनीज के ओर को कहाँ से माइन किया जाता है? मध्य प्रदेश से। निकल, निकल के ओर कहाँ से माइन किए जाते हैं? उड़ीसा से। नेक्स्ट है लेड जिंक। लेड जिंक के ओर को कहाँ से माइन किया जाता है? राजस्थान से। एस्बेस्टोस को कहाँ से माइन किया जाता है? आंध्र प्रदेश से। मैंगनीज को मध्य प्रदेश से माइन किया जाता है। निकल को उड़ीसा से। लिंड जो लेड और जो जिंक है, लेड और जिंक के ओर को राजस्थान से माइन किया जाता है। एस्बेस्टोस के ओर को आंध्र प्रदेश से माइन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया इज। मैंगनीज का इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ हाई टू लो प्रोडक्शन स्टेटस इन द ईयर 2013-14। ठीक है, ये तो जब ये 2013-14 का डेटा पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2013-14 के अकॉर्डिंग उस टाइम पर जो करंट सीक्वेंस था मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का इंडिया में, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और इसको हम अब करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रेजेंटली द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैंगनीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हाई टू लो इन द ईयर 2018-19 आर। तो सबसे पहले आएगा, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इनको देखें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर उड़ीसा, फोर्थ नंबर पे कर्नाटका और फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश। इसमें पूछा गया है कि जो मैंगनीज का प्रोडक्शन है, ठीक है, कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होता है, इसको हाई टू लो अरेंज करना है। अगर हम इसको 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो मैंगनीज का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, और उसके बाद कर्नाटका में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ये डेटा है 2018-19 का, ठीक है, जो कि बताता है 5 लीडिंग स्टेट्स को जो कि मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। तो फर्स्ट नंबर पर है मैंगनीज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर है उड़ीसा, फोर्थ नंबर पे है कर्नाटका, फिफ्थ नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट में मिनरल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और लिस्ट सेकंड में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो बताना है इसमें कि कौन सा जो मिनरल है उसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, इसको मैच करना है। तो जो आयरन ओर मिनरल है, आयरन ओर मिनरल का जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा स्टेट है? उड़ीसा है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ से माइन किया जाता है? कॉपर सबसे ज़्यादा माइन किया जाता है राजस्थान से। इसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ से माइन किया जाता है? कर्नाटका से। नेक्स्ट है माइका। माइका सबसे ज़्यादा कहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आयरन ओर का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा, कॉपर का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, गोल्ड का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, माइका का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या है? 4 आयरन, 4 ओर दिए गए हैं, 4 मिनरल्स दिए गए हैं। बताना है कि इंडिया किसके प्रोडक्शन में वर्ल्ड में लीड करता है। पहला है शीट माइका, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। जो इंडिया है वो शीट माइका में की प्रोडक्शन में वर्ल्ड में लीड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शीट माइका, ठीक है। तो देख लेते हैं मिनरल्स और कंट्री लीडिंग इन प्रोडक्शन। तो शीट माइका में जो माइका की शीट है, इसमें जो लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड में वो हमारी कंट्री है इंडिया। कॉपर, जो कॉपर मिनरल है, कॉपर मिनरल के लिए जो लीडिंग प्रोडक्शन में है, जो लीडिंग इन प्रोडक्शन में जो कंट्री है वो है चिली। इसके बाद नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम जो मिनरल है इसके लिए जो लीडिंग है प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है जिप्सम के लिए चाइना है। और आयरन ओर की प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो है चाइना, ठीक है। जिप्सम और आयरन ओर दोनों के लिए ही प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो है चाइना। किसमें? जिप्सम और आयरन ओर में जो लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड में वो है चाइना। कॉपर की प्रोडक्शन में, जो कॉपर मिनरल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है चिली, ठीक है। और शीट माइका के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में जो लीडिंग कंट्री है वो है हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज़ अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल। तो इसको बताना है। इसमें बताया गया है कि इंडिया हैज़ नॉट अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी मिनरल, जो कि ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, टिन, सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट। ठीक है, इंडिया हैज़ नॉट अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी मिनरल मैंशनड इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि टिन, सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट, इनमें से किसी में भी इंडिया अभी क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ है। इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन नहीं किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी क्या है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में मिनरल्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उसके कंसर्निंग स्टेट्स दिए गए हैं। लिस्ट फर्स्ट में है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल कौन से स्टेट्स में होता है, राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम है राजस्थान। गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, राजस्थान में। ठीक है, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी राजस्थान में ही होता है। और मिनरल ऑयल का भी राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बताया गया है कि राजस्थान में होता है। गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका में। और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेटालिक मिनरल। इनमें से बताना है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट, इसमें से कौन सा मेटालिक मिनरल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम इज़ नॉट ए मेटालिक मिनरल। जिप्सम क्या है, एक मेटालिक मिनरल नहीं है। इंडिया हैज वेरियस नॉन मेटालिक मिनरल रिजर्व्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स अवेलेबल फ्रॉम इंडिया आर फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, गार्नेट और वोलोस्टोनाइट और वर्मिकुलाइट, ओक्रे और परलाइट और बेंटोनाइट, एस्बेस्टॉस, कैडमियम, फेल्सपार, सोपस्टोन, काओलिन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन और क्या है, डायटोमाइट और पायरोफेलाइट, फ्लोराइट और वैनेडियम, ड्यूनाइट और इल्मेनाइट, गैलियम एंड जिरकॉन, ये सभी क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। और इनमें से जो नॉन मेटालिक मिनरल है या जो मेटालिक मिनरल नहीं है, जिप्सम क्या है, जिप्सम इज़ नॉट ए मेटालिक मिनरल। और मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट क्या हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। इंडिया हैज़ वेरियस नॉन मेटालिक मिनरल रिजर्व्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स अवेलेबल फ्रॉम इंडिया आर फॉस्फोराइट, ओक्रे, पेरलाइट, बेंटोनाइट, एस्बेस्टॉस, कैडमियम, फेल्सपार, सोपस्टोन, काओलिन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, डायटोमाइट और पायरोफाइलाइट और फ्लोराइट। ठीक है, फ्लोराइट और वैनेडियम और ड्यूनाइट और इल्मेनाइट, गैलियम एंड जिरकॉन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जिसमें कि जिप्सम भी आता है। एस्बेस्टॉस, जिप्सम, ओक्रे, गार्नेट और डोलोमाइट, ये सभी क्या हैं, फेल्सपार, लाइमस्टोन। ठीक है, और ये सिलिमेनाइट, फ्लोराइट, वैनेडियम, ड्यूनाइट, गैलियम, जिरकॉन, ये सभी नॉन मेटालिक मिनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मेन जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020, राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया ड्यूरिंग 2019-20। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मेन जिप्सम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ राजस्थान। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020, राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया ड्यूरिंग 2019-20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट, which is number 1 a source of environmental pollution, number 2 used for raising oil fertility and number 3 after value addition is used in health and building sector। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, ये सभी किसके बारे में बताया गया है, जिप्सम के बारे में।
तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, जिप्सम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट। Gypsum is a source of environmental pollution. Gypsum is used for raising soil fertility and after value addition, gypsum is used in health and construction sector. क्या पढ़ा हमने जिप्सम के बारे में? क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट, which is number 1 a source of environmental pollution, number 2 used for raising soil fertility, and number 3 after value addition gypsum which is used in health and बिल्डिंग सेक्टर। तो इसका आंसर बताना था कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट में होता है और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने पढ़ा कि जिप्सम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट। कहाँ पर पाया जाता है जिप्सम? जिप्सम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट। जिप्सम पाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में चुरू, बीकानेर, श्री गंगानगर बेल्ट में। जिप्सम इज़ अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जिप्सम इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड आफ्टर वैल्यू एडिशन जिप्सम इज़ यूज्ड इन हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है? जो लिस्ट फर्स्ट है उसको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल। कोल कहाँ पर होता है? कोल हो जाएगा ए का 2। ठीक है, कोल हो जाएगा कर्णपुरा में। कोल इज़ फाउंड इन कर्णपुरा इन झारखंड। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर पाया जाएगा? गोल्ड इज़ फाउंड इन द माइंस ऑफ हुट्टी इन कर्नाटका। ठीक है, गोल्ड हो जाएगा हुट्टी में। उसके बाद नेक्स्ट है माइका। माइका इज़ फाउंड इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो माइका हो जाएगा नेल्लौर में। नेक्स्ट है मैग्नीज़। मैग्नीज़ कहाँ पर पाया जाएगा? मैग्नीज़ इज़ फाउंड इन भांद्रा माइंस इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हमने देखा ए है कोल। तो कोल कहाँ पर पाया जाएगा? कोल इज़ फाउंड इन करणपुरा इन झारखंड। ठीक है, कोल इज़ फाउंड इन करणपुरा इन झारखंड। तो कोल हो जाएगा करणपुरा A2। उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर पाया जाएगा? गोल्ड इज़ फाउंड इन माइंस ऑफ हुट्टी इन कर्नाटका। तो गोल्ड कहाँ पर पाया जाएगा? हुट्टी में। हुट्टी माइंस इन कर्नाटका। बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है माइका। माइका इज़ फाउंड इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। माइका कहाँ पर पाया जाएगा? माइका पाया जाएगा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो माइका हो जाएगा नेल्लौर, सी का 4। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर पाया जाएगा? मैग्नीज इज़ फाउंड इन भांद्रा माइंस इन महाराष्ट्र। मैग्नीज पाया जाएगा भांद्रा में। ठीक है, भांद्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। डी का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीज इज़ फाउंड इन भांद्रा माइंस इन महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार। कोल है, कोयला जो है, कोल इज़ फाउंड इन कर्णपुरा। कोल इज़ फाउंड इन करणपुरा इन झारखंड। गोल्ड इज़ फाउंड इन माइंस ऑफ हुट्टी इन कर्नाटका। माइका इज़ फाउंड इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मैग्नीज इज़ फाउंड इन भांद्रा माइंस ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी क्या है? लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है? लिस्ट फर्स्ट में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इसको मैच करना है। सबसे पहला है डायमंड। डायमंड किसका एलिमेंट होता है? कार्बन। ठीक है, कार्बन का एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल जो कि क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। तो मार्बल किसका फॉर्म है? कैल्शियम का फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट है सैंड। सैंड किसका फॉर्म है? सिलिकॉन। ठीक है, सैंड का एलिमेंट क्या है? सिलिकॉन है। रूबी का एलिमेंट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डायमंड के लिए एलिमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन। मार्बल के लिए एलिमेंट क्या हो जाएगा? कैल्शियम। सैंड के लिए एलिमेंट क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। रूबी के लिए एलिमेंट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? ये क्या है? सेंटर और मिनरल्स दिए गए हैं, इनको क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहला है माकूम। माकूम में कौन सा मिनरल मिलता है? कोल। कोल का सेंटर है माकूम। और नेक्स्ट है डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा से क्या मिलता है? आयरन और मिनरल मिलता है। कोरापुट उड़ीसा से क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। चित्रदुर्ग से क्या मिलता है? मैंगनीज मिलता है। ठीक है,
माकूम, माकूम आसाम, इससे मिलता है कोल, माकूम से कोल मिलता है। और जो डल्ली राजहरा है, डल्ली राजहरा से आयरन ओर मिलता है। कोरापुट से बॉक्साइट मिलता है और चित्रदुर्ग से मैंगनीज मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी जो प्लेसेस हैं और जो मिनरल्स हैं उनको मैच करना है। सबसे पहले है अमगुरी, अमगुरी आसाम में है और यहाँ से पेट्रोलियम मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है लांजीगढ़, लांजीगढ़ जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से बॉक्साइट मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है कामठी, ठीक है, कामठी जो है या कैम्प्टी जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ से कोल मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है बेल्लारी, बेल्लारी कर्नाटका में है और यहाँ से आयरन ओर मिलता है। इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 21 में बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले है अमगुरी, अमगुरी जो कि आसाम में है, वो क्या है, पेट्रोलियम मिनरल के लिए है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लांजीगढ़, लांजीगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में है और लांजीगढ़ किसके लिए फेमस है, फॉर बॉक्साइट मिनरल। इसके बाद नेक्स्ट है कामठी, कामठी कहाँ है, महाराष्ट्र में और ये फेमस है कोल के लिए और यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉपर दिया गया है। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कामठी जो है, कामठी से कौन सा मिनरल मिलता है, कोल मिलता है, ठीक है, कामठी महाराष्ट्र में है और कामठी से कोल मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है बेल्लारी, बेल्लारी कहाँ है, कर्नाटका में है और बेल्लारी से आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में रीजन दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके मिनरल दिए गए हैं, तो मैच करना है इसको भी। सबसे पहले है बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ जो उड़ीसा में है, वहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है, आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट है कोडरमा, कोडरमा जो कि झारखंड में है, कोडरमा से माइका मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है मोसाबनी, जो मोसाबानी है, मोसाबनी है झारखंड में, वहाँ से कॉपर मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है रावा, ठीक है, रावा कहाँ पर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में है और वहाँ से पेट्रोलियम मिनरल मिलता है, ठीक है। जो बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, वहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है, बादाम पहाड़ उड़ीसा से आयरन ओर मिनरल मिलता है। कोडरमा, कोडरमा झारखंड से माइका मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है मोसाबनी, मोसाबनी झारखंड से कॉपर मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है रावा, रावा जो कि क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ से पेट्रोलियम मिनरल मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं, बादाम पहाड़ उड़ीसा, वहाँ से क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। कोडरमा झारखंड से माइका प्रोड्यूस होता है। मोसाबनी झारखंड से कॉपर प्रोड्यूस होता है और रावा कृष्णा गोदावरी बेसिन से पेट्रोलियम मिनरल मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी क्या है, लिस्ट फर्स्ट में आयरन ओर जोन दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में स्टेट दिए गए हैं, तो उनको मैच करना है, कौन सा आयरन जोन कौन से स्टेट में है। सबसे पहले है बादाम पहाड़, जो बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन है वो कहाँ पर है, बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन है उड़ीसा में, ठीक है, और आयरन ओर के लिए फेमस है बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन, तो जो डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन है वो कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख आयरन ओर जोन, जो कुद्रेमुख आयरन ओर जोन है वो कौन से स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में है। नेक्स्ट है नोआमुंडी आयरन ओर जोन, नोआमुंडी आयरन ओर जोन कहाँ है, झारखंड में है। फिर से देख लीजिए, बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन कहाँ है, उड़ीसा में। डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख आयरन ओर जोन कहाँ है, कर्नाटका में। नोआमुंडी आयरन ओर जोन कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। माइनिंग एरिया और उनका जो मिनरल वेल्थ है उसके बारे में उन दोनों को मैच करना है कि कौन सा मिनरल कहाँ पर कौन से माइनिंग एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं, जो कालाहांडी माइनिंग एरिया है वहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है, बॉक्साइट। उसके बाद जो जावार है राजस्थान में, वहाँ से क्या मिलता है, जिंक एंड लेड। उसके बाद जो कोलार माइनिंग एरिया है, कोलार माइनिंग एरिया से गोल्ड मिनरल माइन किया जाता है। और जो मोसाबानी है, मोसाबानी से कॉपर मिनरल को माइन किया जाता है। कालाहांडी माइनिंग एरिया से क्या कौन सा मिनरल मिलता है, बॉक्साइट, कालाहांडी से बॉक्साइट मिलता है। जो जावार की खाने हैं राजस्थान में, जो जावार माइनिंग एरिया है वहाँ से जिंक और लेड को माइन किया जाता है। नेक्स्ट है कोलार, कोलार कहाँ से मिलता है, कोलार जो माइनिंग एरिया है
कोलार जो क्या है कर्नाटका में जो माइनिंग एरिया है वहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है, वहाँ से गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट है मोसाबानी, जो मोसाबानी माइनिंग एरिया है वहाँ से कॉपर मिनरल मिलता है। मोसाबानी माइनिंग एरिया से कॉपर मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, उसको बताना है। तो डल्ली राजहरा किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, ठीक है। राखा किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉपर के लिए। और नेल्लौर किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। नेल्लौर किस चीज़ के लिए फेमस है, नेल्लौर इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, नेल्लौर मैग्नीज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, नेल्लौर फेमस है माइका के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेल्लौर इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका। नेक्स्ट है अमरकंटक, अमरकंटक किस चीज़ के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए, ठीक है। नेल्लौर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका एंड कॉपर। साथ ही जो नेल्लौर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि फेमस है। नेल्लौर किस चीज़ के लिए फेमस है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका एंड कॉपर, ठीक है। माइका और कॉपर के लिए फेमस है नेल्लौर, मैग्नीज़ के लिए नहीं है। दस ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच। बाकी जो डल्ली राजहरा है वो आयरन ओर के लिए है। जो राखा है वहाँ से कॉपर प्रोड्यूस होता है, कॉपर मिलता है। नेल्लौर से क्या मिलता है, माइका एंड कॉपर का प्रोडक्शन होता है। और अमरकंटक से बॉक्साइट होता है, ठीक है, बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मिनरल्स और उनके माइनिंग एरिया को मैच करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो ग्रेफाइट मिनरल कहाँ पर मिलता है, ग्रेफाइट मिनरल मिलता है रामपा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, रंपा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से ग्रेफाइट मिलता है। लेड के लिए माइनिंग एरिया है जावार राजस्थान। साल्ट के लिए दिदवाना राजस्थान। सिल्वर के लिए माइनिंग एरिया है बेल्लारी कर्नाटक। फिर से देख लीजिए एक बार, जो ग्रेफाइट मिनरल है उसका माइनिंग एरिया है रंपा आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट का माइनिंग एरिया है रंपा आंध्र प्रदेश। लेड का माइनिंग एरिया है जावार राजस्थान। उसके बाद है सॉल्ट का माइनिंग एरिया है दिदवाना राजस्थान। सिल्वर मिनरल का माइनिंग एरिया है बेल्लारी कर्नाटका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या करना है, जो प्लेस हैं और जो उनके मिनरल्स हैं, रेस्पेक्टिव मिनरल्स हैं, उनको मैच करना है। तो सबसे पहले है अंकलेश्वर कहाँ है, अंकलेश्वर है वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो और किस चीज़ के लिए फेमस है अंकलेश्वर फेमस है किस चीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा बी है, ए का 2। अंकलेश्वर इज़ फेमस फॉर पेट्रोलियम, ठीक है। अंकलेश्वर क्या है, एक ऑयल फील्ड है। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ वडोदरा एंड नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ खंबात इन भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है, यानी ये क्या हो जाएगा, पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है अंकलेश्वर, ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है डल्ली राजहरा किस चीज़ के लिए फेमस है, डल्ली राजहरा इज़ होम ऑफ आयरन ओर कैप्टिव माइंस फॉर भिलाई स्टील प्लांट, द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। डल्ली राजहरा क्या है, डल्ली राजहरा इज़ होम ऑफ आयरन ओर कैप्टिव माइंस फॉर भिलाई स्टील प्लांट, द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। डल्ली राजहरा किससे रिलेटेड है, आयरन ओर से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। डल्ली राजहरा इज़ रिलेटेड टू आयरन ओर। नेक्स्ट है कोडरमा किससे रिलेटेड है, कोडरमा इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ माइका, ठीक है। कोडरमा किससे रिलेटेड है, माइका के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोडरमा माइका हो जाएगा। खेतरी क्या है, कॉपर माइंस हैं जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं, तो खेतरी डी का 3 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या है, कॉपर इज़ लार्जली ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतड़ी सिंघाना खोडारीबा एंड भानगोनी माइंस, ठीक है। कहाँ से कॉपर ऑब्टेन किया जाता है, कॉपर इज़ लार्जली ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतड़ी, जो कि दिया गया है हमको, खेतड़ी सिंघाना खोडरीबा एंड भानगोनी माइंस, ठीक है। तो इसको हमने
मैच कर लिया। सबसे पहले हमने देखा कि अंकलेश्वर क्या है, अंकलेश्वर एक ऑयल फील्ड है, यानी ये किस चीज़ के लिए है, पेट्रोलियम के लिए, तो ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा इज़ फेमस फॉर आयरन ओर, डल्ली राजहरा बी का 1 हो गया। और ये कहाँ पर है डल्ली राजहरा आयरन ओर, जो कि क्या है, भिलाई स्टील प्लांट के लिए क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन ओर यहाँ से मिलता है और इस भिलाई स्टील प्लांट के लिए इसकी सप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो डल्ली राजहरा क्या हो गया, आयरन ओर हो गया। नेक्स्ट है सी कोडरमा, तो कोडरमा क्या है, कोडरमा इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइका, सी का 4 हो गया। खेतरी क्या है, कॉपर माइंस है जो कि राजस्थान में है, डी का 3 हो गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ वडोदरा एंड नियरली 160 किलोमीटर साउथ ऑफ खंबात in the Bharuch district of the state of Gujarat. Dalli Rajhara is home of iron ore captive mines for Bhilai Steel Plant, the largest integrated steel plant in India. Dalli Rajhara कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ नोन फॉर माइका, कॉपर इज़ लार्जली ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतड़ी सिंघाना, खोडारीबा एंड भानगोनी माइंस, ठीक है। दस ऑप्शन बी इज़ करेक्टली मैच्ड, ठीक है। हमने देखा कि जो बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन है वो कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन छत्तीसगढ़ में है, इसको ध्यान रखिएगा। डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख आयरन ओर जोन कर्नाटका में है और नोआमुंडी आयरन ओर जोन झारखंड में है। बादाम पहाड़ आयरन ओर जोन उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा आयरन ओर जोन छत्तीसगढ़ स्टेट में है। कुद्रेमुख आयरन ओर जोन कर्नाटका स्टेट में है। नोआमुंडी आयरन ओर जोन झारखंड में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, मिनरल्स और उनके एरिया ऑफ प्रोडक्शन से उनको मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तो सबसे पहले मिनरल है आयरन ओर, आयरन ओर का प्रोडक्शन जोन है क्योंझार, ठीक है। आयरन ओर को प्रोड्यूस किया जाता है क्योंझार में। कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है खेतड़ी में। कोल प्रोड्यूस किया जाता है कोरबा में। माइका प्रोड्यूस किया जाता है कोडरमा में, ठीक है। मिनरल्स और उनके प्रोडक्शन जोन को मैच करना है। तो आयरन ओर कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंझार में। आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है क्योंझार में। कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है खेतड़ी में। कोल प्रोड्यूस किया जाता है कोरबा में और माइका प्रोड्यूस किया जाता है कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉपर गोल्ड आयरन कोल इन द फॉलोइंग, ठीक है। इनका क्या करना है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉपर गोल्ड आयरन कोल इन द फॉलोइंग, ठीक है। ये दिए गए हैं, इनकी प्रोड्यूसिंग जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कॉपर कहाँ से होता है, खेतड़ी से। गोल्ड कहाँ से होता है, कोलार से, कोलार माइन से। आयरन कहाँ से होता है, कुद्रेमुख कर्नाटका से। कोल कहाँ से होता है, झरिया झारखंड से, ठीक है। तो यही हमको मैच करना था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर खेतड़ी, गोल्ड कोलार से और आयरन कुद्रेमुख से, कोल झरिया से, ठीक है। खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान आर मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग माइंस ऑफ द कंट्री. Kolar mines of Karnataka is major gold producing mines of the country. The Kudremukh mine is one of the largest iron ore mines in the world. Jharia is a notified area in Dhanbad district in Jharkhand state. Jharia कहाँ है? Jharia is a notified area in Dhanbad district of Jharkhand state. Jharia is famous for its rich coal resources used to make coke. ठीक है, Jharia is famous for its rich coal resources used to make coke. ठीक है, thus option A is the correct sequence of copper, gold, iron and coal in India. तो कॉपर कहाँ मिलता है? खेतड़ी में. गोल्ड कहाँ मिलता है? कोलार में मिलता है, कोलार माइंस में. आयरन कुद्रेमुख में. कोल झरिया झारखंड में. झरिया कहाँ पर है? झरिया है झारखंड में. ठीक है, झरिया इज़ ए नोटिफाइड एरिया इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट in Jharkhand state. Jharia is famous for its rich coal resources used to make coke. ठीक है,
और कोलार माइंस कहाँ है? कर्नाटका में है। मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग माइंस ऑफ द कंट्री हैं। और जो खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान है आर द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग माइंस ऑफ द कंट्री हैं। द कुद्रेमुख माइन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर माइंस इन द वर्ल्ड। झरिया इज ए नोटिफाइड एरिया इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। झरिया इज फेमस फॉर इट्स रिच कोल रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक कोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले लिस्ट 1 में जो मिनरल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी जो प्रोड्यूसिंग माइंस हैं वो दी गई हैं, प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो गोल्ड कहाँ से माइन किया जाता है? कोलार से। ठीक है, जो कोलार माइन है कर्नाटका में ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कोल। कोल कहाँ से हो जाएगा? झरिया झारखंड से। ठीक है, कोल को माइन किया जाता है। ठीक है, तो कोल हो जाएगा झरिया यानी बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर क्या है? खेतड़ी माइंस, जो कि राजस्थान की खेतड़ी माइंस है, वहाँ से कॉपर को माइन किया जाता है, सी का 1। उसके बाद हो जाएगा आयरन। आयरन कहाँ से इसको माइन किया जाता है? आयरन को कर्नाटका में जो कुद्रेमुख माइन है वहाँ से इसको माइन किया जाता है। तो आयरन का हो जाएगा कुद्रेमुख, डी का 3। तो इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो गोल्ड कहाँ से? ए का 2 गोल्ड कोलार से, और बी का 4 कोल कहाँ से? झरिया से, और सी का 1 कॉपर खेतरी से, आयरन। ठीक है, डी का 3 आयरन कोलार से। सॉरी, आयरन कहाँ से? कुद्रेमुख, 3 इज कुद्रेमुख। जबकि कॉपर कहाँ से मिलता है? खेतड़ी माइन से। गोल्ड कोलार से, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मिलता है कोलार से, आयरन मिलेगा कुद्रेमुख से। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ए मोनोपोली इन क्रोमाइट प्रोडक्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट हैज़ ए मोनोपोली इन क्रोमाइट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डेटा पब्लिश्ड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इन इंडियन मिनरल एयरबुक 2019। उड़ीसा continues to be the major chromite producing state accounting for almost the entire production. Nominal production was reported from Maharashtra. ठीक है, which of the following state has a monopoly in chromite production? तो इसका आंसर हो गया उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू डेटा पब्लिश्ड बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इन इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019, उड़ीसा कंटिन्यूज टू बी द मेजर क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर प्रोडक्शन। नॉमिनल प्रोडक्शन वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में मिनरल रिजर्व्स दिए गए हैं और उनके एरियाज़ दिए गए हैं। तो सबसे पहले है जिप्सम। जिप्सम कहाँ से मिलता है? जामसार से। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर कहाँ से मिलता है? खोह डारीबा से। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कहाँ से मिलता है? झामार कोतरा से। उसके बाद लेड एंड जिंक कहाँ से मिलता है? रामपुरा अगूचा से। ठीक है, एरिया है ये जहाँ से मिनरल रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने देखा जो मिनरल रिजर्व है और जो उनका एरिया है करस्पॉन्डिंग। तो जिप्सम जो मिनरल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जामसार से मिलता है। नेक्स्ट है कॉपर मिनरल। कॉपर मिनरल कहाँ से मिलता है? खोह डारीबा रीजन से मिलता है। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कहाँ से मिलता है? झामार कोतरा से मिलता है। नेक्स्ट है लेड एंड जिंक। लेड एंड जिंक कहाँ से मिलता है? रामपुरा अगूचा से मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिनरल रिजर्व्स और उनके करस्पॉन्डिंग एरिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। जिप्सम कहाँ से मिलता है? जामसार एरिया से। कॉपर मिनरल कहाँ से मिलता है? कॉपर मिनरल के रिजर्व कहाँ मिलते हैं? खोह डारीबा से। और रॉक फॉस्फेट मिनरल रिजर्व कहाँ मिलते हैं? झामार कोतरा से। और जो लेड और जिंक के रिजर्व हैं कहाँ पाए जाते हैं? रामपुरा अगूचा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग करना है इसमें भी। तो खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी इज़ फेमस फॉर, खेतड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर माइंस। ठीक है, उसके बाद झरिया किस चीज़ के लिए फेमस है? कोल के लिए। सिंहभूम इज़ फेमस फॉर आयरन। तो क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले जो आयरन है, आयरन हो जाएगा सिंहभूम में, 1 का सी। और जो कॉपर है, कॉपर माइंस कहाँ है? खेतड़ी में है। ठीक है, 2 का ए हो जाएगा। और कोल कहाँ पर पाया जाएगा? कोल पाया जाएगा झरिया में, तो हो जाएगा 3 का बी। ठीक है,
खेतरी हैज़ कॉपर रिजर्व्स इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। खेतरी हैज़ कॉपर रिजर्व्स इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। झरिया लोकेटेड इन झारखंड। झरिया लोकेटेड इन झारखंड इज फेमस फॉर इट्स रिच कोल रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक कोक। सिंहभूम ऑफ झारखंड इज नोन फॉर इट्स आयरन ओर डिपोजिट्स, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खेतरी हैज़ कॉपर रिजर्व्स इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. Jharia located in Jharkhand is famous for its rich coal resources used to make coke. Singhbhum of Jharkhand is known for its iron ore deposits. ठीक है, Singhbhum of Jharkhand is known for its iron ore deposits. Hence option A is the correct answer. Option A क्या है? वन का C यानी खेतरी is famous for सब वन का सी यानी आयरन. आयरन जो है फेमस फॉर आयरन कहाँ से माइन किया जाता है? सिंहभूम से. ठीक है, आयरन मिलता है सिंहभूम से. 2 का ए हो जाएगा मीन्स कॉपर. कॉपर कहाँ से मिल रहा है? कॉपर मिल रहा है खेतरी माइन से. 3 का बी कोल मिल रहा है झरिया से. खेतरी कॉपर माइन है. और उसके बाद हमने पढ़ा जो झरिया है, झरिया क्या है? कोल के लिए फेमस है. ठीक है, सिंहभूम ऑफ झारखंड आयरन ओर के लिए फेमस है. सिंहभूम ऑफ झारखंड इज़ फेमस फॉर आयरन ओर डिपोजिट्स. झरिया लोकेटेड इन झारखंड इज़ फेमस फॉर इट्स रिच कोल रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक कोल और मेक कोक. ठीक है, झरिया क्या है? एक फेमस रिच क्या है? रिच प्लेसेस है जहाँ पर कि झरिया जो माइन है जहाँ से कि क्या है? कोल के रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे कि कोक बनाया जाता है. और जो सिंहभूम ऑफ झारखंड है वहाँ से आयरन ओर प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पर आयरन ओर डिपॉजिट होते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. तो सबसे पहले है बैलाडीला. बैलाडीला कहाँ पर है? बैलाडीला इज़ इन छत्तीसगढ़ स्टेट. ठीक है, बैलाडीला कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं है. बैलाडीला इज़ इन छत्तीसगढ़. तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, इसमें पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया. तो बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में. ठीक है, बैलाडीला इज़ इन छत्तीसगढ़ स्टेट. और नेक्स्ट है केमानागुंडी. केमानागुंडी कहाँ है? केमानागुंडी मिनरल प्रोडक्शन जो एरिया है वो है कर्नाटका में. नेक्स्ट है सिंहभूम. सिंहभूम है झारखंड में. मयूरभंज है उड़ीसा में. बैलाडीला माइंस ध्यान रखिएगा, बैलाडीला कहाँ पर है? बैलाडीला इज़ इन छत्तीसगढ़. और केमानगुंडी इज़ इन कर्नाटका. सिंहभूम इज़ इन झारखंड. और मयूरभंज कहाँ है? मयूरभंज इज़ इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट. बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला इज़ इन छत्तीसगढ़. केमानागुंडी कर्नाटका में है. सिंहभूम कहाँ है? सिंहभूम झारखंड में है. उसके बाद है मयूरभंज उड़ीसा में है. ठीक है, मिनरल प्रोडक्शन स्टेट है और उसका मिनरल प्रोडक्शन और कंसर्निंग स्टेट को मैच करना है. तो बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में. और केमानागुंडी कहाँ है? कर्नाटका में. सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में. मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. इसमें भी क्या है? मैच द फॉलोइंग मिनरल्स एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड. ठीक है, डायमंड के लिए ए का 2 हो जाएगा यानी ए का 2 यानी डायमंड कहाँ पर होगा? पन्ना. ठीक है, डायमंड को माइन किया जाता है पन्ना से. ठीक है, पन्ना लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस. ठीक है, पन्ना लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस. नेक्स्ट है आयरन ओर. आयरन ओर बी का 1. आयरन ओर कहाँ मिलता है? बस्तर दुर्ग से मिलता है. ठीक है, आयरन ओर डिपोजिट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर एसोसिएटेड विद द रॉक्स दैट आर नोन टू कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर हेमेटाइट. ठीक है, आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर एसोसिएटेड विद द रॉक्स दैट आर नोन टू कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर्स हेमेटाइट. ठीक है, तो आयरन ओर का क्या हो जाएगा? आयरन ओर का हो जाएगा बी का 1. आयरन ओर बस्तर दुर्ग. ठीक है, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है. आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर एसोसिएटेड विद द रॉक्स दैट आर नोन टू कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर्स हेमेटाइट. मेजर आयरन ओर रीजन्स आर राजनांदगांव, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड बिलासपुर इन छत्तीसगढ़. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्साइट. बॉक्साइट कहाँ पाया जाएगा? हाई ग्रेड बॉक्साइट ओर इज फाउंड इन द प्लेटू रीजन ऑफ सारगुजा. ठीक है, प्लेटू रीजन ऑफ सारगुजा, दुर्ग, रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़.
ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है बॉक्साइट? सी का हो जाएगा 3, सरगुजा, मांडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर, इन एरियाज़ में पाया जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। और नेक्स्ट है कोल। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड फ्रॉम सिंधी कहाँ से पाया जा रहा है? सिंधी है या सीधी है, शाहडोल, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। जो कोल है, कोल डिपॉजिट्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं? कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड फ्रॉम सीधी और शाहडोल, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा, सीधी और सुरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शाहडोल, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये रीजन्स हैं कोल के। तो सबसे पहले ए का 2, डायमंड इन पन्ना, ठीक है। आयरन ओर, बी का 1, आयरन ओर बस्तर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। और सी का 3, बॉक्साइट, सी का 3 हो जाएगा। बॉक्साइट कहाँ से मिल रहा है? बॉक्साइट मिल रहा है सरगुजा, मांडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर रीजन से। उसके बाद नेक्स्ट है डी का 4, कोल। कोल कहाँ से मिल रहा है? कोल प्रोड्यूस होता है सीधी, सुरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शाहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। पन्ना located in Madhya Pradesh is famous for its diamond mines. Panna located in Madhya Pradesh is famous for its diamond mines. Iron ore deposits of Chhattisgarh are associated with the rocks that are known to contain high-grade iron ores hematite. Major iron ore regions are रंजनगांव, ठीक है, राजनंदगांव, ठीक है। मेजर आयरन ओर रीजन्स कौन कौन से हैं? मेजर आयरन ओर रीजन्स आर राजनंदगांव, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड बिलासपुर। हाई ग्रेड बॉक्साइड ओर इज फाउंड इन द प्लेटू रीजन ऑफ सरगुजा, दुर्ग, रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड फ्रॉम सीधी, शाहडोल, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। एक बार फिर से देख लेते हैं। पन्ना लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। पन्ना किस चीज़ के लिए फेमस है? पन्ना इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। आयरन और डिपॉजिट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर एसोसिएटेड विद द रॉक्स दैट आर नोन टू कंटेन हाई ग्रेड आयरन और हेमेटाइट। मेजर आयरन और रीजन्स इन, मेजर आयरन और रीजन्स कहाँ पर हैं? राजनंदगांव, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड बिलासपुर। हाई ग्रेड बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? हाई ग्रेड बॉक्साइट ओर इज फाउंड इन द प्लेटू रीजन ऑफ सरगुजा, दुर्ग, रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। जो हमने क्या पढ़ा कि जो हाई ग्रेड बॉक्साइड ओर है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? हाई ग्रेड बॉक्साइड ओर इज़ फाउंड इन द प्लेटू रीजन ऑफ सरगुजा, दुर्ग, रायगढ़ एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट है कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड फ्रॉम सिधी, शाहडोल, छिंदवाड़ा एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें भी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिए गए हैं। लिस्ट फर्स्ट में मिनरल है और लिस्ट सेकंड में उनके रीज़न है। तो जो प्रोडक्शन एरियाज़ हैं उनको मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट फर्स्ट में है सबसे पहले कोल। कोल हमको कहाँ से मिलता है? कोल कहाँ से मिलेगा हमको इसमें से? और सबसे पहले देख लीजिए कॉपर कहाँ से मिल जाएगा? कॉपर मिल जाएगा हमको खेतड़ी से, ठीक है। आयरन ओर मिल जाएगा हमको कुद्रेमुख से। सिल्वर कहाँ से मिल जाएगा हमको? सिल्वर और इसमें बच गया कोल, सिल्वर और कोल बच गया, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले है खेतड़ी के लिए, तो जो क्या है, खेतड़ी सिंघाना माइंस लोकेटेड एट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कॉपर माइन, ठीक है। खेतड़ी से तो कॉपर मिल जाएगा। तालचर किस चीज़ के लिए फेमस है? तालचर इज़ फेमस फॉर कोल फील्ड, ठीक है। तालचर कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एट द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर। तालचर किससे रिलेटेड है? कोल फील्ड के लिए फेमस है। तालचर कोल फील्ड इज़ लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एट द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर। और उसके बाद जो कुद्रेमुख माइन है, कुद्रेमुख माइन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर माइंस इन द वर्ल्ड। द माइनिंग टेक्स प्लेस at the western ghats at कुद्रेमुख located in चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कुद्रेमुख माइन किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। और जो जावार माइंस है उदयपुर राजस्थान की, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? जावार माइंस ऑफ उदयपुर राजस्थान आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक है। जावार माइंस ऑफ उदयपुर
राजस्थान आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक है। जावार माइंस फेमस है सिल्वर के प्रोडक्शन के लिए, और खेतड़ी सिंघाना माइंस लोकेटेड एट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कॉपर माइनिंग। तालचर कोल फील्ड इज लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एट द बैंक ऑफ द ब्राह्मणी रिवर। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले कोल का क्या हो जाएगा, कोल फील्ड कहाँ है, तालचर में। जैसा कि अभी हमने देखा कि तालचर कोल फील्ड इज लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एट द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर। तालचर क्या है, एक कोल से रिलेटेड रीजन है, कोल फील्ड है। तालचर कोल फील्ड इज लोकेटेड इन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एट द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर। नेक्स्ट है, इसके बाद कोल हो जाएगा तालचर। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर माइंस हमने देख लिया, खेतड़ी में है। आयरन और कुद्रेमुख में है। और सिल्वर कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जावार, ठीक है, जावार में हो रहा है, उदयपुर में। जावार माइंस ऑफ उदयपुर राजस्थान आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4। सबसे पहले हो जाएगा ए का 4, यानी कोल क्या हो जाएगा, तालचर में। कॉपर क्या हो जाएगा, खेतड़ी में, यानी बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सी, आयरन ओर हो जाएगा कुद्रेमुख, सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा, डी है सिल्वर हमने पढ़ा। जावार जो कि राजस्थान का जो उदयपुर में जो जावार माइंस हैं आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो डी का हो जाएगा 2, ठीक है। डी क्या है, सिल्वर का हो जाएगा जावार माइंस। कहाँ पर है ये, जावार माइंस है उदयपुर में, ठीक है। जावार माइंस ऑफ उदयपुर राजस्थान आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। The Kudremukh mine is one of the largest iron ore mines in the world. The mining takes place at the Western Ghats at Kudremukh, located in Chikmagaluru district of Karnataka. Jawar mines of Udaipur, Rajasthan are the largest producer of silver. Khetri Singhana mines located at Jhunjhunu district of Rajasthan are known for copper mining. Talcher coalfield is located in Angul district of Odisha at the bank of Brahmani river. ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले है आयरन ओर कहाँ है, कुद्रेमुख में है, बिल्कुल सही है। सेकंड है मैंगनीज, कोरापुट, ठीक है। कोरापुट जो है वो मैंगनीज के लिए फेमस नहीं है, कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। कोरापुट किस चीज़ के लिए फेमस है, कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो कोरापुट किस चीज़ के लिए है, कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए खेतड़ी फेमस है। कोल का प्रोडक्शन होता है सिंगरैनी में। आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है कुद्रेमुख में। और कोरापुट किस चीज़ के लिए फेमस है, कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम, नॉट फॉर मैंगनीज, ठीक है। इसीलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरापुट इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है कॉपर मिलता है खेतड़ी माइन से, कोल प्रोडक्शन होता है सिंगरैनी से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में मिनरल दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके रीजंस दिए गए हैं कि प्लेसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉपर माइंस कहाँ पर है, कॉपर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, खेतड़ी से, खेतड़ी माइन से। जो गैस प्लांट है वो कहाँ पर है, औरिया में है। और एल्यूमिनियम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोरबा से। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, कोची से। तो ध्यान रखिएगा इसको। कॉपर माइंस कहाँ पर है, खेतड़ी में। गैस प्लांट कहाँ पर है, औरैया में गैस प्लांट है। एल्यूमिनियम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोरबा से। पेट्रोलियम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोची से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। बालाघाट इज़ नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस, ठीक है, बताना है। स्टेटमेंट नंबर 2। और मझगांव इज़ नोन फॉर इट्स मैंगनीज प्रोडक्शन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं। बालाघाट किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। जो बालाघाट रीजन है वो जाना जाता है मध्य प्रदेश में मैंगनीज और प्रोडक्शन एरिया के रूप में, ठीक है। जो बालाघाट रीजन है वो मध्य प्रदेश में मैंगनीज और प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हो जाएगा जो पहला है रॉन्ग हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। और जो मझगांव है, मझगांव एरिया कहाँ है,
जो मझगांव एरिया है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो उसके लिए वहाँ पर मैंगनीज डिपॉजिट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मैंगनीज ओर प्रोडक्शन इन इंडिया। इन बालाघाट द मेन एरियाज ऑफ माइनिंग आर काटगारिया, लंगूर और वेरवाली, नेत्रा, तोड़ोदी और बातजारी, सालवा एंड चिकपारा। डायमंड इज़ फाउंड इन माघवान एरिया। डायमंड कहाँ पर पाया जाता है? डायमंड इज़ फाउंड इन ठीक है, माघवान एरिया इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। द रिजर्व ऑफ डायमंड इन दिस एरिया इज अबाउट 1 million carats. So both the statement 1 and 2 are not correct. Hence option D is the correct answer. Balaghat, Jabalpur, Jhabua and Chhindwara district of Madhya Pradesh are an important reason for manganese ore production in area. बालाघाट क्या है? एक मैंगनीज ओर प्रोडक्शन एरिया है। बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर मैंगनीज ओर प्रोडक्शन इन इंडिया। इन बालाघाट द मेन एरियाज ऑफ माइनिंग आर काटगारिया, लंगूर, वेरवाली, नेत्रा, तोरोदी और बटजारी, सालवा एंड चिकपारा। डायमंड इज फाउंड इन माघवाना, ठीक है, माघवान एरिया इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है मझगवान, ठीक है, मझगवान रीजन जो है। डायमंड इज़ फाउंड इन, यहाँ पर क्या पाया जाता है? जो ये मझगवान एरिया है, डायमंड इज़ फाउंड इन मझगवान एरिया इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। डायमंड इज़ फाउंड इन मझगवान एरिया in Panna district of Madhya Pradesh. The reserve of diamond in this area is about 1 million carats. So both statement 1 and 2 are not correct. Hence option D is the correct answer. Neither 1 nor 2. जो मझगवान है वो किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है? ठीक है, डायमंड इज़ फाउंड इन मझगवान एरिया इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं मझगवान में? द रिजर्व ऑफ डायमंड इन दिस एरिया इज़ अबाउट 1 million carats, ठीक है। जो मझगवान एरिया है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? डायमंड के लिए फेमस है। डायमंड इज़ फाउंड इन मझगवान एरिया इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। द रिजर्व ऑफ डायमंड इन दिस एरिया इज़ अबाउट 1 million कैरेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्लेट्स आर मेड एट, इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। ग्रेनाइट इज़ फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ललितपुर, महोबा एंड बंडा। ग्रेनाइट स्लेट्स आर वाइडली मैन्युफैक्चर्ड इन ललितपुर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्लेट्स आर मेड एट, कहाँ पर बनाई जाती हैं ग्रेनाइट स्लैब्स एंड स्लेट्स? ललितपुर में। ग्रेनाइट इज़ फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ललितपुर, महोबा एंड बंडा में ग्रेनाइट पाया जाता है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, ललितपुर, महोबा और बंडा में। ग्रेनाइट स्लेट्स आर वाइडली मैन्युफैक्चर्ड इन ललितपुर। जो ग्रेनाइट स्लेट्स हैं उनको वाइडली मैन्युफैक्चर किया जाता है ललितपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वेयर आर डायमंड माइंस इन इंडिया? डायमंड माइंस कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना इज़ ए ब्यूटीफुल टाउन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। पन्ना इज़ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ डायमंड माइनिंग इन इंडिया। हियर माइंस ऑफ डायमंड आर लोकेटेड इन पन्ना एंड सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। Where are diamond mines in India? Diamond mines are in Madhya Pradesh. Panna is a beautiful town located in Madhya Pradesh. Panna is the biggest center of diamond mining in India. Here, mines of diamond are located in Panna and Satna district of Madhya Pradesh. Next है question number 42. In which one of the following districts has large reserves of diamond bearing kimberlite बीन डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट? इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट ट्रैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन पयालीखंड एंड बेहरादीन इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टोकापाल इन बस्तर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 42? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट? इसका आंसर है रायपुर। लार्ज रिजर्व्स ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट ट्रैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन पयाली खंड एंड बहरादीन इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टोकापाल इन बस्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं इनमें से बताना है। फर्स्ट है यूरेनियम, दूसरा है एंडोलोसाइट, तीसरा है पायराइट, चौथा है डोलोमाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये तीन मिनरल्स पाए जाते हैं, 3 मेटल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में? एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम इज़ नॉट फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। फायर क्ले, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट एंड पोटास आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। एंडोलोसाइट एंड कैल्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिर्ज़ापुर। यूरेनियम इज़ फाउंड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या मेटल मिलते हैं? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से मिलता है एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यूरेनियम इज़ नॉट फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। फायर क्ले, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट एंड पोटास आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं या कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? सोनभद्र में मिलता है लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट एंड पोटास आर फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। एंडोलोसाइट एंड कैल्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिर्ज़ापुर। एंडोलोसाइट और कैल्साइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मिर्ज़ापुर से। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। यूरेनियम इज़ फाउंड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेटल्स हैं? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हैं, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मेटल हैं एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ केरला? तो इसका आंसर बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला दिया है इन्होंने इल्मेनाइट, सेकंड है जिरकॉन, थर्ड है सिलीमेनाइट, फोर्थ है टंगस्टन। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ केरला? इसमें से बताना है इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिलीमेनाइट और टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। यानी इल्मेनाइट, जिरकॉन एंड सिलीमेनाइट ये क्या हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ केरला, ठीक है। केरला के जो बीच सैंड्स हैं वहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं? ठीक है, केरला के बीच सैंड्स में पाए जाते हैं इल्मेनाइट, जिरकॉन, ठीक है। इल्मेनाइट, जिरकॉन एंड सिलीमेनाइट। क्वेश्चन 44 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर फाउंड इन द बीच सैंड्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी, यानी इल्मेनाइट, जिरकॉन एंड सिलीमेनाइट। द हैवी मिनरल एंड डिपॉजिट्स इन केरला कंटेन एन assemblies ऑफ इल्मेनाइट, र्यूटाइल और ल्यूकोक्सीन और मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट, जिरकॉन एंड सिलीमेनाइट। द स्टेट possesses one of the world class deposits of mineral sand in the coastal tracts between निंदाकारा एंड कायामकुलम, ठीक है। हेंस बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? द हैवी मिनरल सैंड डिपॉजिट्स इन केरला कंटेन एंड असेंबलीज ऑफ इल्मेनाइट, र्यूटाइल और ल्यूकोक्सीन, मोनाजाइट,
zircon and sillimanite. The Kerala state possesses one of the world-class deposits of mineral sand in the coastal tracts between Nindakara and Kayamkulam. तो क्वेश्चन 44 क्या था? Which of the following substances are found in the beach sand of many parts of Kerala? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 and 3, यानी ilmenite, zircon and sillimanite are the substances which are found in the beach sand of many parts of Kerala. The heavy mineral sand deposits in Kerala contain in assemblage of ilmenite, rutile और leucoxene, monazite, zircon and sillimanite. The Kerala state possesses one of the world-class deposits of mineral sand in the coastal tracts between Nindakara and Kayamkulam. Hence option B is the correct answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट कोस्टल बीचेस ऑफ केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोजाइट मिनरल आर फाउंड इन द केरलाज कोस्ट. ठीक है, केरला के कोस्ट में मोनोजाइट मिनरल पाया जाता है. साथ ही क्या पाया जाता है? थोरियम एंड यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोजाइट मिनरल. ठीक है, मोनोजाइट मिनरल्स आर फाउंड इन केरलाज कोस्ट. थोरियम एंड यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोजाइट मिनरल्स. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट कोस्टल बीचेस ऑफ केरला? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाजाइट मिनरल्स आर फाउंड इन केरलाज कोस्ट. थोरियम एंड यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोजाइट मिनरल्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर इन केरला अबेंडेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोजाइट. मोनोजाइट मिनरल्स आर फाउंड इन केरलाज कोस्ट. थोरियम एंड यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोजाइट मिनरल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अकर्स इन केरला अबेंडेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोजाइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. इन इंडिया मोनोजाइट इज़ फाउंड इन. मोनोजाइट कहाँ मिलता है? तमिलनाडु एंड केरला में. मोनोजाइट इन इंडिया इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात. मोनोजाइट कहाँ मिलता है? मोनोजाइट इन इंडिया इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट है केरलाज मोनोजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 2 ओनली, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. केरलाज मोनोजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम. मोनोजाइट क्या है? Monazite is an important ore for thorium, lanthanum, uranium and cerium. ठीक है, मोनेजाइट जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर फॉर थोरियम, lanthanum, uranium and cerium. Monazite is often found in coastal areas of Kerala in large quantities. India, Madagascar and South Africa have large deposits of monazite sands. The deposits in India are particularly rich in monazite. Thus statement 1 is wrong but statement 2 is correct. Statement 1 में क्या था? India does not have any deposits of thorium. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इंडिया के पास क्या है? डिपॉजिट्स हैं थोरियम के. ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि केरलाज मोनोजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम. मोनोजाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ थोरियम, लैंथानम, यूरेनियम एंड सीरियम. Monazite is often found in coastal areas of Kerala in large quantities. India, Madagascar and South Africa have large deposits of monazite sands. The deposits in India are particularly rich in monazite. Thus statement 1 is wrong but statement 2 is correct. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? यूरेनियम प्रोड्यूसिंग जोन्स हैं और उनके स्टेट से मैच करना है जो उनके सेंटर हैं. क्वेश्चन नंबर 49 में अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस करेक्ट मैचिंग ऑफ यूरेनियम प्रोडक्शन जोन्स एंड कंसर्न्ड स्टेट्स इज एज फॉलोज. यूरेनियम प्रोडक्शन जोन है
डोमिएसिएट कहाँ पर है? मेघालय में है। डोमिएसिएट यूरेनियम प्रोडक्शन जोन है मेघालय में। और लांबापुर यूरेनियम प्रोडक्शन जोन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। रोहेल यूरेनियम प्रोडक्शन जोन कहाँ है? राजस्थान में। गोगी यूरेनियम प्रोडक्शन जोन कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये सभी क्या है? यूरेनियम प्रोडक्शन जोन है। डोमियासेट कहाँ है? डोमियासियात है मेघालय में। लांबापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रोहेल कहाँ है? राजस्थान में। गोगी कहाँ है? कर्नाटका में। तो यूरेनियम प्रोडक्शन जोन्स एंड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो डोमियासियाट यूरेनियम प्रोडक्शन जोन इज इन मेघालय। लांबापुर यूरेनियम प्रोडक्शन जोन इज इन आंध्र प्रदेश। रोहेल यूरेनियम प्रोडक्शन जोन इन राजस्थान। गोगी यूरेनियम प्रोडक्शन जोन इज इन कर्नाटका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जादूगुड़ा इज़ फेमस फॉर। जादूगुड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है? जादूगुड़ा इज़ फेमस फॉर यूरेनियम। जादूगुड़ा माइन इज़ ए यूरेनियम माइन इन जादूगुड़ा विलेज इन द पूर्वी सिंहभूम district of Jharkhand, which became operational in 1967 and was the first uranium mine in India. The deposits at जादूगुड़ा माइन were discovered in 1951. जादूगुड़ा माइन क्यों फेमस है? जादूगुड़ा माइन इज़ फेमस फॉर यूरेनियम। जादूगुड़ा माइन इज़ ए यूरेनियम माइन इन जादूगुड़ा विलेज इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, which became operational in 1967. And Jaduguda mine was the first uranium mine in India, which was operational in 1967. The deposits at Jaduguda mine were discovered in 1951. Next question है question number 51. Which mineral is mined in तुरामदीह? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम मिनरल इज माइंड इन तुरामदीह। यूरेनियम इज माइंड इन तुरामदीह। कहाँ पर है तुरामदीह? तुरामदीह है ईस्टर्न सिंहभूम झारखंड में। तुरामदीह ईस्टर्न सिंहभूम झारखंड में जो तुरामदीह माइन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम जादूगुड़ा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग इन तुरामदीह। तुरामदीह कहाँ है? तुरामदीह इज़ इन तुरामदीह मिनरल जो तुरामदीह माइन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तुरामदीह इज़ फेमस फॉर यूरेनियम। यूरेनियम इज़ माइंड इन तुरामदीह। ये कहाँ पर है? ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम जादूगुड़ा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग इन तुरामदीह। ठीक है। यूरेनियम इज़ माइंड इन तुरामदीह ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तुरामदीह is approximately 24 kilometer away from जादूगुड़ा. Uranium Corporation of India Limited is responsible for mining in तुरामदीह। कहाँ पर है ये? ईस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। और किसकी माइन है? यूरेनियम की माइन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? इसमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 1 है बॉक्साइट, 2 है डोलोमाइट, 3 है आयरन ओर एंड उसके बाद 4 है टिन। ठीक है। तो क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन। तो इसका आंसर है कि ये चारों ही जो मिनरल्स हैं ये सभी मिनरल्स छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर और टिन। ठीक है। ये चारों ही छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर एंड टिन। द लिस्ट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो फर्स्ट है सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? सुरगुजा, कोरबा, जशपुर, कांकेर, बस्तर और राजनांदगांव एंड कबीरधाम। यहाँ पर क्या है? बॉक्साइट यहाँ से बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर एरिया है, जांगीर एरिया है। ठीक है।
जांगीर एरिया, बस्तर, दुर्ग एंड रायपुर से डोलोमाइट मिलता है। आयरन ओर कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ में बैलाडिला माइन से, बस्तर माइन से। क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ में आयरन ओर मिलता है बैलाडिला माइन से और बस्तर से। टिन कहाँ से मिलता है? टिन मिलता है बस्तर से। 10 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट मिलता है सुरगुजा, कोरबा, जसपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव एंड कबीरधाम से बॉक्साइट मिलता है। डोलोमाइट से डोलोमाइट कहाँ से मिलता है छत्तीसगढ़ में? डोलोमाइट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर, बस्तर, दुर्ग और रायपुर से मिलता है। आयरन ओर कहाँ पर से मिलता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में आयरन ओर मिलता है बैलाडिला और बस्तर से। टिन कहाँ पर मिलता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में टिन मिलता है बस्तर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या करना है? जो आयरन ओर्स हैं और जो भी मिनरल्स हैं और उनके जो भी प्रोड्यूसिंग जो भी प्लेस हैं उनको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले है पालामू। पालामू की फेमस है। पालामू किस चीज़ के लिए फेमस है? पालामू इज़ फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या है? हज़ारीबाग। हज़ारीबाग क्यों फेमस है? हज़ारीबाग इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है खेतड़ी। खेतड़ी क्यों फेमस है? खेतड़ी फेमस है कॉपर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्योंझार। क्योंझार क्यों फेमस है? क्योंझार फेमस है मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पालामू किस चीज़ के लिए फेमस है? पालामू इज़ फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। हज़ारीबाग इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन। क्योंझार फेमस फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा पालामू। तो पालामू किस चीज़ के लिए फेमस था? पालामू इज़ फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। ठीक है, पालामू हो जाएगा माइका प्रोडक्शन यानी ए का 3। ठीक है, तो ए का 3 किस में दिया गया है? ए का 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। पालामू लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज़ फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हज़ारीबाग। हज़ारीबाग किस चीज़ के लिए फेमस है? हज़ारीबाग इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। ठीक है, हज़ारीबाग इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन यानी बी का 4 हो जाएगा। हज़ारीबाग किस चीज़ के लिए फेमस है? बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए, तो बी का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, कॉपर माइन है खेतड़ी में, तो सी का हो जाएगा 1। ठीक है, सी का हो जाएगा 1। तो ठीक है, खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन। और नेक्स्ट बचता है इसमें क्योंझार। क्योंझार किस चीज़ के लिए फेमस है? क्योंझार लोकेटेड इन उड़ीसा इज़ फेमस फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। क्योंझार किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। डी का 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंझार लोकेटेड इन उड़ीसा इज़ फेमस फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। पालामू जो कि स्टेट ऑफ झारखंड में स्थित है, पालामू इज़ फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। हज़ारीबाग इज़ फेमस फॉर बॉक्साइट प्रोडक्शन। खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन। क्योंझार लोकेटेड इन उड़ीसा इज़ फेमस फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। क्योंझार किस चीज़ के लिए फेमस है? जो कि उड़ीसा में है क्योंझार इज़ फेमस फॉर मैंगनीज प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है द रिसोर्स इन विच छोटा नागपुर प्लेटू इज़ प्रॉस्पेरसिस। इसका आंसर हो जाएगा मिनरल। द रिसोर्स इन विच छोटा नागपुर प्लेटू इज़ प्रॉस्पेरसिस मिनरल। छोटा नागपुर प्लेटू इज प्रॉस्पेरस इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, द रिसोर्स इन विच छोटा नागपुर प्लेटू इज प्रॉस्पेरस इज मिनरल। छोटा नागपुर प्लेटू इज प्रॉस्पेरस इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी क्या है? जो मिनरल्स हैं और जो उनकी लोकेशंस हैं उसको मैच करना है। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस करेक्ट मैचिंग ऑफ द मिनरल्स एंड कंसर्न लोकेशंस आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले जो कोल मिनरल है, कोल कहाँ पर पाया जाएगा? कोल की लोकेशन है गिरिडीह झारखंड में। कोल मिनरल पाया जाएगा गिरिडीह झारखंड में पाया जाता है। कॉपर मिनरल कहाँ पाया जाता है? अलवर राजस्थान में। मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है धारवाड़ कर्नाटका में। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? जयमकोंडम तमिलनाडु में। ठीक है,
तो सबसे पहले है कोल मिनरल। कोल मिनरल कहाँ पाया जाता है? गिरिडीह है झारखंड में। उसके बाद कॉपर मिनरल। कॉपर मिनरल पाया जाता है अलवर राजस्थान में। मैंगनीज मिनरल पाया जाता है धारवाड़ कर्नाटका में। लिग्नाइट मिनरल पाया जाता है जयमकोंडम तमिलनाडु में। जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट मिनरल कहाँ पाया जाता है? जयमकोंडम तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी क्या है? लिस्ट फर्स्ट में मिनरल माइनिंग एरियाज दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में मिनरल्स दिए गए हैं, इनको भी मैच करना है। ठीक है, माइनिंग एरिया और मिनरल्स को। तो सबसे पहले है गुरु महिशानी। गुरु महिशानी कहाँ है? गुरु महिशानी किस चीज़ के लिए फेमस है? गुरु महिशानी इज़ फेमस फॉर आयरन ओर। तालचर। तालचर इज़ फेमस फॉर कोल फील्ड है तालचर में। जादूगुड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है? जादूगुड़ा इज़ फेमस फॉर यूरेनियम। और जावार माइंस किस चीज़ के लिए फेमस हैं? लेड के लिए, लेड और सिल्वर के लिए। ठीक है, माइनिंग एरिया और मिनरल्स। तो गुरु महिसानी मिनरल किस मिनरल के लिए फेमस है? गुरु महिसानी जो रीजन है, गुरु महिसानी रीजन आयरन ओर के लिए फेमस है। तालचर में कोल फील्ड्स हैं, तो तालचर कोल मिनरल के लिए फेमस है। जादूगुड़ा में यूरेनियम की माइंस हैं। जावर एरिया लेड और सिल्वर के लिए फेमस है। तो गुरु महिसानी इज फेमस फॉर आयरन ओर रीजन। तालचर इज़ फेमस फॉर कोल फील्ड्स। जादूगुड़ा इज़ फेमस फॉर यूरेनियम माइंस। जावर इज़ फेमस फॉर लेड एंड सिल्वर माइंस। ठीक है, राजस्थान में जो जावार है वहाँ पर लेड और सिल्वर वहाँ से माइन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है? जो माइनिंग एरियाज़ हैं और जो उनके रेस्पेक्टिव मिनरल्स हैं, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हमने देखा गुरु महिसानी। जो गुरु महिसानी है वहाँ से आयरन ओर को प्रोड्यूस किया जाता है, आयरन ओर को माइन किया जाता है गुरु महिसानी से। तालचर एक कोल फील्ड है, तो तालचर से कोल माइन किया जाता है। जादूगुड़ा माइंस किसके लिए हैं? जादूगुड़ा माइंस आर फॉर यूरेनियम। जादूगुड़ा यूरेनियम माइंस है। और जावार क्या है? जिंक के लिए यहाँ पे बताया गया है। जबकि जावार किस चीज़ के लिए है? जावार हो सकता है जिंक के लिए भी और सिल्वर के लिए भी। और किसके लिए हमने पढ़ा था? जावार इज़ फेमस फॉर सिल्वर, लेड एंड जिंक। ठीक है, माइनिंग एरिया गुरु महिसानी से मिलता है आयरन ओर मिनरल। तालचर से मिलता है कोल मिनरल। और जादूगुड़ा से मिलता है यूरेनियम मिनरल। और जावार से मिलता है लेड, जिंक और सिल्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हाउ मच सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सांभर लेक विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन इज़ करेक्ट फॉर द देन कंडीशन ऑफ द ईयर 1992। ये 1992 में पूछा गया है। बट एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द third largest common salt producing country in the world after China and USA with a production of about 289.49 lakh tons during the year 2017-18. Sambhar Lake produces around 0.78% of India's salt production in 2015-16. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे कि हाउ मच सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सांभर लेक विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। तो इसको हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है, इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए विद ए प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 289.49 लाख टन्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18. Sambhar Lake produces around 0.78% of India's salt production in 2015-16. Sambhar Lake produces around 0.78% of India's salt production in 2015-16. तो सांभर लेक कितना प्रोडक्शन करती है? कुल सॉल्ट प्रोडक्शन का तो 2015-16 में सांभर लेक प्रोड्यूस करती है अराउंड 0.78% ऑफ इंडियाज साल्ट प्रोडक्शन इन 2015-16। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। ठीक है, तो आयरन मैंगनीज सबसे पहले क्या है? मैंगनीज। जो मैंगनीज है बैलाडिला में पाया जाता है, नहीं, ये क्या है? गलत हो जाएगा। बॉक्साइट क्या है? लोहार डागा, ये बिल्कुल सही है।
बॉक्साइट करेक्टली मैच है, बॉक्साइट लोहारडागा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लोहारडागा, ठीक है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लोहारडागा झारखंड। जबकि जो कोडरमा है, कोडरमा किस चीज़ के लिए फेमस है? कोडरमा इज़ फेमस फॉर माइका, तालचर कोल एंड बेलाडिला आयरन ओर हैं, ठीक है। जो बेलाडिला है वहाँ से क्या मिलता है? बेलाडिला से मैंगनीज नहीं मिलता है, बेलाडिला से आयरन ओर मिलता है। तालचर, तालचर क्या है? तालचर क्या है? कोल फील्ड है, हमने इसको पढ़ा था, तालचर कोल फील्ड हो जाएगा। बेलाडिला जो है, बेलाडिला से क्या मिलता है? आयरन ओर मिलता है, बेलाडिला से आयरन ओर मिलता है। बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट मिलता है लोहारडागा से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है तालचर, तालचर से हमें मिलता है कोल फील्ड है तालचर में। और माइका मिलता है हमें कोडरमा से, ठीक है, माइका मिलता है कोडरमा से। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लोहारडागा झारखंड, वाइल कोडरमा इज़ फेमस फॉर माइका। तालचर कोल फील्ड है तो तालचर से कोल मिलता है। और बेलाडिला किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। बेलाडिला माइंस आर फेमस फॉर आयरन ओर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या है? मिनरल्स और इंडस्ट्रीज़ इन विच लार्जली यूज्ड। तो सबसे पहले है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा? सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन यूज़ होता है। कॉपर कहाँ पर यूज़ होता है? कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस में यूज़ होता है? बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मैंगनीज़ किस में यूज़ होता है? मैंगनीज़ इज़ यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 60 में हमने देखा मिनरल्स, और जो मिनरल्स हैं इंडस्ट्रीज़ इन विच लार्जली यूज्ड। लाइमस्टोन मिनरल सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होता है? लाइमस्टोन मिनरल इज़ लार्जली यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। कॉपर मिनरल किस में यूज़ होता है? कॉपर मिनरल इज़ लार्जली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। कॉपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज़ होता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है। कॉपर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स में। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा होता है स्टील इंडस्ट्री में। स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैंगनीज का। और एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में बॉक्साइट का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स में हम सबसे ज़्यादा कॉपर का यूज़ करते हैं। और सीमेंट में लाइमस्टोन यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो भी मिनरल्स का जो पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि थर्मल होगा। सबसे पहले हम थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया? इसमें हमने जो क्या थी हमारा जो कोल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। कोल के बाद भी हमने जो भी आयरन और माइंस वगैरह जो भी मिनरल्स से इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, उसके बारे में फर्दर कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।